Today's mantra is just wonderful. Millions of people have the same question that we always say, Om, Om, Om. What is the meaning of Om? And with this mantra, actually, the Kathopanishad starts. When Yamaraj will start telling what is the actually self knowledge, the gist of all knowledge. So let's go for the mantra. Kathopanishad 6 and 2, mantra number 15. प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली पंचदश मंत्र सर्वे वेदा यत्पदमानन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योत् ब्रवीमि ओम इति एतत् ब्रवीम्योमित्येतत्. So Yamraj told the goal, the word which all the Vedas declare of praise, which all penance proclaim, and wishing for which they lead the life of brahmachari, that goal I will briefly tell you, and it is Om. Sarve means all. Vedaha, all Vedas, means the gist of all Vedic scriptures means Upanishad. Yat, which Padam, the goal, the destination of our life. Amananti, proclaim. Tapansi, act of penance. Sarvani, all. Cha, also. Yat, which. Vadanti, declare. Yat, which. Ichhantaha, wishing for. Brahmacharyam, life of brahmacharyans, means self-controlled life devoted to knowledge and austerity. Charanti, lead. Tat, that. Te, your. Padam, here again goal. Sangrahena, briefly. Bravimi, I tell. Om, Omkara. Itietat, it is thus. All the Vedas proclaims that what you can achieve, the highest one, what you can achieve. And all the Vedas tell about the way to reach it, means the tapasya, penance, all the form of tapasya. So in the Veda,
There is the indication of going to the highest destination, highest aim, the gist of life. And also in the Veda, also it is there. What is the main purpose of our human life? If really anyone verily interested in knowing what is the essence of life, why this human being? Why I am suffering? There is no reason. I live a very noble, honest life. Why I am to suffer? I do puja, I do dhanam, I do charity, I give dakshina. Yet why this sort of mental turbulence I am having? Why there is so much physical affliction in me? When that sort of thought process triggers into the better half in our mind, then the mumukshu, who are the desirous person of liberation, they discards the eight kind of maithuna, that is called brahmacharya. Eight kind of maithuna. What they are, you can write who are writing. Darshanam, sparshanam, kelihi, prekshanam, guhya bhashanam, sankalpaha, adhyavasayascha, kriyanivrittihi, evacha, etat maithunam ashtangam pravadanti manishinaha. Viparitam brahmacharyam anushteyam mumukshubhihi. So all sorts of vasana, kamana, desire for the opposite gender and physical gain, their only aim is to attain Paramatma, Parameshwar, the highest, the essence of everything else. And they start upasana. And that I am going to tell you in gist, and that is Omkar. Omkara is the symbol, vacha, varval exclamation of Brahman, Parameshwar. The pronunciation of that Omkara, the verbal expression of that Omkara, what gets effulgent, that is also Omkara. With this sound, your whole mind becomes purified. Your
Whole mind becomes single pointed, samahita chittam and vishuddha chittam. They do sadhana of Omkara. And those mumukshus, the desirous seekers of liberation, with the support of Omkara, they start their sadhana. Om, that later, is a sound only. When a purified soul, when a single pointed soul, with the concentrated mind, start chanting is Omkara. The actual meaning of Omkara gets reflected in the heart. What will happen? The sadhaka, the spiritual seeker, will be merged into that Omkara in this very physical body. Will be merged into the ocean of happiness, eternal bliss, where there is no affliction, no pain, no nothing else, no sorrow. Here, the preceptor with this stanza starts his famous discourse, which is the very core of this Upanishad. To begin with, Lord Death, in brief, summarizes all that he has to stay upon, that which is beyond dharma and adharma, which is other than the cause and effect, which is something different from the past and the future. Upanishad itself conforms to a style wherein a redundant alphabet is considered to be colossal sin, and in such a brief literature, noted for superhuman brevity, for maintaining which, at places, even language has been sometimes sacrificed, we are surely heading to some insurmountable difficulty when Lord Death himself warns us that he is going to be deliberately brief. The word padam, though it looks so small, has an accepted volume of meaning over which even a textbook can be written. There are something like 22 meanings for these two letters. The two lettered, innocent looking words such as way, place, abode, state, footstep, footprint, sign, word, a goal, and so on. All the Vedas means all the Upanishads, though they argue differently, but they point out the same goal of truth. The 108 Upanishads may be considered as so many arrow mark along the circumstances of the same circle, all of them pointing out to the same center. Just as in such a case, geometrically, no two arrows on the circumference can be parallel. So too, no two approaches belonging to two different Upanishads run parallel. And yet, all of them, when produced, meet at one and the same point, the center, the truth. Thus,
The goal that is pointed out by all the Upanishads, says Lord Dev, is the factor that you are asking me now, and that factor is in brief indicated by the pregnant symbol Om. All tapasya, all severe and conscious practices of self control are pursued, and long years of studies are undertaken by living with a teacher, a life of sacrifice, surrender, and devotion by seekers, only to realize this truth which you are asking for, which in brief is indicated by the symbol Om. By the symbol Om. Close echo of this immortal stanza, mantra, is heard in Srimad Bhagavad Gita also. And it is also noteworthy that in the Bhagavad Gita, we have the second half of this mantra repeated substantially. In Bhagavad Gita, 8th chapter, 11th mantra, you will get. Yadichanta brahmacharyam charanti tatte padam sangrahena pravaksye. The same, copy to copy, as if. The reality is hinted at by the significance of the symbol Om, but thereby we shall not say that Om defines truth. For to define truth is to defile it. In the technique of self perfection, as conceived by the rishis of the Upanishads, the symbol Om is at once a formula indicating the goal and a pratika, an idol of Brahman for purpose of worship, and Shaguna meditation with form meditation. आत्म तत्व की उपदेश दे रहा है यमराज जी, और इसी समय ही उन्होंने ओमकार की उपदेश किया। आपको लग सकता है कि अरे दे रहे थे तो आत्म तत्व की उपदेश, अचानक ये ओमकार कैसे आ गया? इसका तात्पर्य यही है कि आत्म तत्व बहुत ही कठिन विषय है जानने के लिए, दुर्गेय, उधर पहुंचना बहुत मुश्किल है। हमारे शरीर, मन, बुद्धि का ऐसे व्यवस्था होना चाहिए जो बहुत ही दुर्लभ है, और वो व्यवस्था आता है निरंतर गुरु सेवा, गुरु वाक्य पालन, गुरु गृह में वास और ब्रह्मचर्य, 8 प्रकार की मैथुन त्याग। ये बहुत ही कठिन बात है। इसीलिए यमराज को भी पता था कि एक दिन कली काल आएगा जहां पर लोगों के पास टाइम नहीं रहेगा, जहां पर इंटेलेक्ट इतना प्योर और इतना सटल नहीं होगा, मन इतना शुद्ध नहीं होगा, शरीर में बल इतना नहीं होगा, फिर भी इसी समय भी मुमुक्षु रहेगा। तब ये मुमुक्षु कैसे आत्म तत्व को जान पाओगे? इसीलिए आत्म तत्व की स्वरूप वर्णन कर रहा है, उसको थोड़ा सीधा करने के लिए। नहीं तो मन कैसे उनको जानेगा? हमारे ये मन,
जो हर वक्त विषय समुंदर में डूबे हुए हैं। इसीलिए यमराज ने बताया कि पहले ही ओमकार की साधना करो। ओमकार की साधना आत्म तत्व को धारणा करने में सहायता हो करेगा। शुद्ध बुद्धि में जिस तत्व को साक्षात रूप में जाना जाता है, अपरोक्ष रूप में जिनको अनुभव किया जाता है, अशुद्ध मन से उसे ग्रहण करना संभव नहीं। मन की शुद्धिकरण की जरूरत है। इसीलिए मन शुद्धिकरण के लिए यमराज जी ओमकार की उपासना, ओमकार की साधना, खुद को जानना ही मनुष्य जीवन की चरम लक्ष्य है। हु एम आई। नहीं तो बेफालतू आया और गया, और बीच में कुछ नटंकी किया, कुछ अच्छा कुछ बुरा, वो भी हमारे पर्सपेक्टिव में। क्यों आया, क्यों इतना झेला, जीवन का उद्देश्य क्या है? खुद को जानना ही जीवन की चरम लक्ष्य है। और वेद उपनिषद हमें सहायता करते हैं उस लक्ष्य लक्ष्य में पहुंचने के लिए। वेद कभी भी डायरेक्टली नहीं इंडिकेट करते ये आत्म तत्व की। बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण की सहायता से बोलते हैं, और कर्म और उपासना के भी निर्देश करते हैं, जिसके पालन करने से एक साधक आत्म तत्व की अधिकारी हो सकता है। सारे वेदों की तात्पर्य है एक ही, वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब ब्रह्म और आत्मा की एकात्मभूति। मैं ही ब्रह्मन हूं। आई एम द एसेंस ऑफ द होल यूनिवर्स। अभिन्न निमित्त विवर्त कारण। आई एम, I am, that's why the universe is. In me alone, the whole world appears. How? As a snake appears on the rope without changing the rope. The whole world appears in Brahman without changing the Brahman. And that Brahman I am. To understand it, to establish in this knowledge, Veda and Upanishads help us. Sarve Vedaha. How powerful it is, वेद तो एक ही है, मतलब उपनिषद। और वेद में ज्यादा से ज्यादा जाग, यज्ञ, हवन के बारे में बताया हुआ है। लेकिन यमराज जी परिष्कार रूप में बोल रहे हैं, नहीं, वो वेद की मकसद नहीं। वेद की मकसद कुछ दूसरा है। हमें आत्म तत्व तक पहुंचाना ही वेद की तात्पर्य है। जो मीमांसक है, मीमांसा दर्शन के लोग, वो बोलते हैं अम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतद अर्थानाम तस्मात् अनित्यम उच्यते। जैमिनी सूत्र में है 1.2.1। ये वेद की अर्थ तात्पर्य
कर्म में ही है। आम्नायस्य क्रियार्थत्वा। वेद मतलब कैसे याग यज्ञ हवन करूं, यही वेद हमें कर्म में नियुक्त करते हैं, कर्म को प्रतिपादन। जो वेद कर्म के बारे में नहीं बोलते वो वेद अनर्थक है। लेकिन वेद की कोई भी अंश अनर्थक नहीं। इसीलिए मीमांसा दर्शन में ये सब ज्ञान को कर्म की सहकारी बताया गया है। अद्वैत वेदांती बोलते हैं जीव और ब्रह्म अभिन्न है, लेकिन मीमांसक ये स्वीकार नहीं करते। उन लोग बोलते हैं जीव और ब्रह्म की ऐक्य असंभव है। उन लोग बोलते हैं मैं जान रहा हूं कि जीव और ब्रह्म अभिन्न। तो बात क्या हुआ? जीव कर्ता या भोक्ता नहीं है। अगर जीव कर्ता या भोक्ता नहीं होता है तो सोमेन यजते, तुम सोम याग करना, तैत्तिरीय संहिता में है 3.2.2। तो ये किसके लिए बताया गया है? अगर कर्ता नहीं है तो यज्ञ की अधिकारी कौन है? तो सोम याग करो ये बोलना ही तो अर्थहीन है। फिर से बोल रहा है सुवर्ग काम यजेत, तैत्तिरीय संहिता 2.5.5। स्वर्ग की सुख भोग करने के लिए ये यज्ञ की अनुष्ठान तुम करो। अगर भोगता ही नहीं रहेगा, भोग करने का लोग ही नहीं रहेगा, कोई कामना विशिष्ट जीव नहीं रहेगा, तो किसके लिए वेद ये सब विधान दे रहे हैं? अगर ये जो विधान आदेश निर्देश दे रहे हैं ये किसी के लिए नहीं दे रहा है, तो ये वाक्य निरर्थक है। तो वेद अप्रमाण होगा। तो ऐसे वेद विरोधी अपसिद्धांत ग्रहण नहीं कर सकते। तो मीमांसक लोग बोलते हैं कर्म में ही वेद की तात्पर्य है। तो अभी वेद का जो ज्ञान कांड है ये उपनिषद, ये कैसे सार्थक होगा? उपनिषद में तो हम लोग कर्म के नहीं बल्कि ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो मीमांसक लोग बोल रहे हैं उपासना कर्म के ही अंतर्भुक्त है। कर्म को अगर और व्यापक अर्थ में आप ग्रहण करो तो जैसे याग यज्ञ हवन में आप शारीरिक कर्म कर रहे हैं, ऐसे ही भगवान को चिंतन करना मानसिक कर्म है। तो मीमांसक को पूछा गया है कि उपनिषद में जहां पर बोल रहा है स्पष्ट रूप में कि जीव और ब्रह्म की ऐक्य के बारे में, ये इसमें आपका क्या मत है? तो उन्होंने बताया ये डायरेक्ट मीनिंग मत लो। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव नश्वर है, पेरिसेबल, ब्रह्म अविनश्वर है। तो जीव और ब्रह्म की एकत्व असंभव है। तो हम लोग ऐसे सोच सकता हूं कि जो यजमान जो यज्ञ कर रहा है वो खुद को ब्रह्म के रूप में सोचेंगे, अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे करके जब सोचेंगे अहम ब्रह्मास्मि है बृहदारण्यक उपनिषद में 1.4.10। ओके, अहम ब्रह्मास्मि ऐसे भावना की द्वारा यजमान की मन की शुद्धि होता है। ये मीमांसक लोग बोल रहे हैं, हाँ, हम लोग नहीं।
तो उन लोग बोल रहा है यज्ञ करने के लिए मानसिक शुद्धि का प्रयोजन है। ऐसे ही सोच रहा है ना ये यूप काष्ठ को, जो जहां से वो अग्नि निकालते उसे सूर्य के रूप में भावना करो। यूपकास्ट क्या सूर्य तो नहीं है? आदित्यो हो, आदित्यो यूप, कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय ब्राह्मण में है 2.1.5.2। तो होल पूरा सूर्य को एक यूपकाष्ठ में तो आपको सोचना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा। तो ऐसे भावना से यूपकाष्ठ, वो लकड़ी शुद्ध होता है। जो लोग पूजा करते हैं उन लोग पूजा से पहले जल को शुद्ध करते हैं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिम कुरु बोल के जल को शुद्ध करते हैं। पुष्प शुद्ध करते हैं, पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्प संभवे पुष्प चावकिरणे च हुं फट स्वाहा बोल के पुष्प को करते हैं। भूत शुद्धि करते हैं। ओम भूत श्रृंगाट शिरः सुषुम्न पथेन मूल श्रृंगाट मुल्ल स्वल्लस जल जल प्रज्जल प्रज्जल सोहम हंस स्वाहा बोल के भूत को शुद्ध करते हैं। क्यों ना? अगर ये सब शुद्ध नहीं होगा तो ये पूजा की उपयोगी नहीं होगा। अशुद्ध वस्तु पूजा की अंगभूत नहीं हो सकता है। ऐसे ही यजमान जो ब्रह्म नहीं है तो उसे ब्रह्म सोचने के लिए बोल रहा है। तो ब्रह्म भावना करते करते यजमान शुद्ध हो जाएगा। यही मीमांसक बोलता है। लेकिन वेद अंत्य मतलब चरम प्रमाण। तो इसे समझने के लिए हम लोग लौकिक प्रणाली का अनुसरण नहीं करूंगा, क्योंकि साधारण वेदार्थ ग्रहण करने के लिए कुछ निर्दिष्ट प्रणाली की जरूरत है। इसीलिए गुरु के पास वेदांत पढ़ना चाहिए। वेदांत में कभी नहीं बताया है पठितव्य, ये श्रोतव्य। सुनने से ही मुक्ति होता है। इसलिए मैं इतना आप लोगों से निवेदन करता हूं, क्लास क्यों नहीं करते? क्लास में आओ। सुनने से ही मुक्ति है। मैं आप लोगों के लिए बोलता हूं, हमारे मेरे क्लास में भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, श्रवण से मुक्ति है। साधारण वक्ता के बारे में जब ज्ञान रहेगा, उनका विवक्षा, उनका बोलने का कला, वो क्या बोलने चाह रहा है, उनके साथ गुरु के साथ आचार्य के साथ यू हैव टू बी इन लाइन। तब उनका ये बात पता चलेगा। माँ कभी कभी गुस्सा में बच्चों को बोल देते थे, अभी तो नहीं बोलते, सोफिस्टिकेटेड मदर। जब मुंह में रख दे देगा, कहां जाऊंगा, मरने जाओ, मरगे जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि माँ वो बोल रहे हैं। बेटे के साथ माँ की ऐसे संबंध है कि उनको पता है। जैसे कि कोई कोई साधु मैंने देखा है, इतना गुस्सा होता था, क्या क्या शब्द बोल देते थे। बाहर की लोग सुनने लगेगा कि ये अभिशाप दे रहा है, कि गुस्से में बहुत कुछ बोल रहा है। लेकिन जब शिष्य उनके साथ एक होगा ना, तो पता चलेगा कि मेरा आचार्य मुझे क्या बोलना चाह रहा है। हो सकता है अभी गुस्से में है, हो सकता है अभी कुछ गलत बोल रहा है, लेकिन व्हाट इज द मेन पर्पस?
सिर्फ भाषा नहीं, कभी कभी मुंह की भाव, साइलेंस, आकार, इंगित से भी हम लोग मनुष्य की बात समझने की कोशिश करते हैं। आकारैः इंगितैः गत्या चेष्टया भाषितेन च नेत्र वक्त्र विकारैश्च गृह्यते अंतर्गतम मनः। मनु संहिता में है 8.26। आकार, इंगित, चेष्टा, वाक्य, कभी आंख ऐसे कर रहा है, मतलब करो, मुंह से बताए नहीं, मतलब हाँ मेरा समर्थन है, करो। अरे क्या कर रहे हो, ये बोलने का जरूरत नहीं, ये आंख ही समझा दे रहा है। नेत्र वक्त्र विकार, वेद तपोरशे है। वेद बोलते इनका कोई वक्ता नहीं। अगर वेद का वक्ता नहीं है तो वक्ता के बारे में कोई धारणा धारणा करना, और ऐसे ही वेद की तात्पर्य निर्णय करना संभव नहीं। तो वेद शास्त्र में जो शब्द, उसका अर्थ ग्रहण, शब्द के छोड़कर अर्थ ग्रहण संभव नहीं। ठीक है, तो वेद वाक्य समझने के लिए 6 प्रकार की उपाय अवलंबन करते हैं हम लोग। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्थवाद, उपपत्ति, जिसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे।